ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب خبروں کی تفصیلات۔ سب سے پہلے بات کریں گے رمضان میں ریلیف فراہمی کی حکومتی یقین دہانیاں اور کارروائیاں وعدوں اور دعووں تک محدود۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی قلت برقرار، غریب صارفین ایک سے دوسرے یوٹیلیٹی سٹور کے چکر کاٹنے پر مجبور، خریدار سبسڈائز اشیاء کی عدم دستیابی پر نالاں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کی رمضان میں بھی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ ریاض شاہی چوک یوٹیلیٹی سٹور پر سستے آٹے کے بحران نے شدت اختیار کر لی۔ سستا آٹا غائب، خواتین کے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر ڈیرے، گھنٹوں بیٹھنے کے باوجود آٹا نہ مل سکا، روزانہ خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ خواتین کی دہائی۔ آٹا ہم کل بھی لینے آئے ہیں، جمعے کے بعد آئے ہیں، تو بیٹھ کے تو نہ چند لوگوں کو اندر بھیجا ہے انہوں نے جنہیں آٹا دے دیا ہے، باقی عوام کو واپس بھیج دیا۔ ہمیں بھی کہا ہے کہ آج آٹا نہیں ہے، آپ نے کل آنا ہے۔ خواتین کہتی ہیں روزے کی حالت میں روز چکر لگانے پر مجبور ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی عدم دستیابی سے ریلیف کی بجائے اذیت مل رہی ہے۔ بدترین مہنگائی نے متوسط طبقے کی خواتین کو بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ خواتین نے کہا کیا کریں، آمدنیاں سکڑتی جا رہی ہیں اور مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ اعلیٰ حکام مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائیں۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ خلزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ سستے آٹے کے اصول کے لیے لمبی قطاریں، سستا آٹا شہریوں کے لیے خواب بن گیا۔ بولے ایک طرف اربوں روپے کی گندم گوداموں میں خراب ہو رہی ہے، دوسری جانب عام مارکیٹ میں بھی آٹا مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ میں سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ ضلع کے یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کا رش اور عملے کی تعداد کم نکلی۔ آٹا پوائنٹس پر مرد و خواتین کی طویل قطاریں، کھلے آسمان تلے باری کا انتظار روزہ داروں کا امتحان بن گیا۔ شہری کہتے ہیں موسم تبدیل ہونے سے کھلے آسمان تلے انتظار مشکل۔ ضلع انتظامیہ اس اہم مسئلے پر توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی جلد از جلد وافر مقدار میں فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ سر اسی یوٹیلیٹی سٹور دی سستے بازار جو آٹا لینا آئے ہیں، لیکن اتنے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ نال سامان لازمی لو۔ لوگ سارا دن اتنے لگا دیں لائنوں لگ کے، عورتیں گھر بچے چھڈ کے آئی ہیں، مرد اپنا کام چھڈ کے آتے، لیکن انہوں فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ شنگ میں ماڈل بازار انتظامیہ کی نااہلی شہریوں پر بھاری پڑنے لگی۔ ماڈل بازار میں قائم سیل پوائنٹ پر رعایتی آٹا بر وقت نہ پہنچ سکا۔ روزے کی حالت میں قطاروں میں کھڑے مرد و خواتین مشکلات سے دوچار۔ شہریوں نے بتایا کہ صبح سویرے ہی آٹے کے حصول کے لیے ماڈل بازار میں انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری نرخ نامے میں سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ تو دیکھا گیا، تاہم دکانداروں نے گرہ فروشی کی روش نہ بدلی اور من مانے نرخوں پر فروخت کا سلسلہ جاری رکھا۔ عوام آسمان کو چھوتی قیمتوں کی وجہ سے بدترین مالی دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ معمولی کمی کے باوجود سفید پوش طبقے کے لیے سبزیوں اور پھل کی خریداری مشکل ہو گئی ہے۔ فیصل آباد میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ قیمتوں میں معمولی کمی کے باوجود سفید پوش طبقے کے لیے سبزیوں اور پھلوں کی خریداری مشکل۔ مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ کے مطابق برائلر مرغی کا گوشت 7 روپے سستا 581 سے 576 روپے کلو ہو گیا۔ انڈے فارمی 269 روپے درجن پر برقرار۔ پیاز درجہ اول 7 روپے سستا 199 روپے کلو۔ لیمو دیسی 25 روپے سستے 200 روپے کلو ہو گئے۔ لیمو چائنا 25 روپے سستا ہو کر 50 روپے کلو۔ سبز مرچ 20 روپے کم ہو کر 310 روپے کلو ہو گئی۔ گھیا کدو مٹر 20 روپے سستے، دھنیا 20 روپے سستا ہو گیا۔ پھل گوبھی مونگرے 20 روپے مہنگے ہو گئے۔ سیب کالا کلو 10 روپے سستا ہو کر 320 روپے کلو ہو گیا۔ سیب گولڈن 200، انار بدانہ 650، انار کنداری 320 روپے کلو پر برقرار ہیں۔ انگور ٹافی 10 روپے بڑھ کر 500 روپے کلو ہو گئے۔ کیلا 190 روپے درجن، امرود 220 روپے کلو میں دستیاب ہیں۔ اسٹرابری 20 روپے کم ہو کر 400 روپے کلو ہو گئی۔ کینو 140 روپے، کینو اسپیشل 270 روپے درجن پر برقرار ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ رمضان میں سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی عوام کے لیے آسان نہ رہی۔ سبز مسالہ جات کے دام جیبوں پر بھاری پڑنے لگے۔ سبزی فروش منہ مانگی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ مہنگائی کو روکنے والا کوئی نہیں، شہریوں کی دہائی۔ سیاح میں سبز مسالہ جات اور سبزیوں کی خریداری جیب پر بھاری پڑنے لگی۔ سبزیاں اور سستی ہو کر بھی پہنچ سے دور، گوشت کھانا بھی آسان نہ ہو سکا۔ سفید پوش طبقے کی قوت خرید جواب دے گئی۔ بینگن 20 روپے سستے 160 روپے، گوبھی کی قیمت 10 روپے کم 200 روپے کلو میں دستیاب۔ ادرک 20 روپے کمی کے بعد 520 روپے، سبز مرچ 100 روپے سستی 200 روپے کلو، پیاز کی قیمت میں 20 روپے کی کمی کے بعد 195 روپے، مرغی کا گوشت 13 روپے کمی کے بعد 568 روپے کلو ہو گیا۔ پہلے سے سبزی اب کم ہو گئی ہے، پہلے زیادہ تھی، اب 20 30 روپے کم ہو گئے سبزی کے ریٹ۔ ہاں جو پیچھے سے کم ہے اب پھر کریں گے ہم بھی۔
टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलू 1, टमाटर 15 और प्याज 35 रुपए किलो तक सस्ते। अदरक, सब्ज मिर्च 10-10, लीमू 30 और शिमला मिर्च 20 रुपए किलो महंगी। सेब 320, केला 190 रुपए दर्जन, खजूर ईरानी 480 रुपए किलो मुकर्रर। अमरूद 20 रुपए इजाफे के बाद 220 रुपए, प्याज 35 रुपए कमी के बाद 200, लहसुन 5 रुपए इजाफे के बाद 595 रुपए किलो, अदरक 10 रुपए इजाफे के बाद 540 रुपए किलो पर पहुंच गया। सब्ज मिर्च 10, लीमू 30, खीरा 5 और शिमला मिर्च भी 20 रुपए किलो तक महंगी। शहरियों का इंतजामिया से अशिया खुरानोश की कीमतों में रिलीफ का मुतालबा। चिन्योट सब्जी मंडी में आलू की कीमत 45 रुपए किलो बरकरार, प्याज 200 से कम होकर 190 रुपए किलो, टमाटर 140 से कम होकर 125, अदरक 520 रुपए, गोभी 20 रुपए इजाफे के बाद 180 रुपए किलो, भिंडी 300, मटर 55, सब्ज मिर्च 320 रुपए से कम होकर 270 रुपए किलो, लीमू 105 रुपए से कम होकर 80 रुपए, सेब 310 रुपए, केला 180 रुपए, खजूर 475 रुपए किलो में दस्तयाब। भवाना में सब्जियों, सब्ज मसाला जात, फलों और खजूर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आम आदमी और मजदूर महंगाई की माफिया के आगे बेबस। खजूर 800, स्ट्रॉबेरी 500, जबकि अंगूर 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। प्याज 350, लहसुन अदरक 600 रुपए किलो, आलू 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। शहरी कहते हैं 1000 रुपए कमाने वाला मजदूर सहरी अफ्तारी का एहतमाम कैसे कर सकता है। पहले रूटीन में थे कि सब्जियां और फल सस्ते थे, जब कि रमजान और मुबारक का महीना शुरू होता है तो फल और सब्जियां महंगी हो जाती हैं, आवाम को मुश्किलात पेश आती है और वो ठीक तरीके से मतलब ना सहरी और ना अफ्तारी का सामान ले पाते हैं। शहरियों का कहना है महंगाई ने तो महाना बजट ही उल्टा कर रख दिया है। समझ नहीं आती गरीब तो वक्त की रोटी कैसे पूरी करे। फैसलाबाद के मॉडल बाजार में रिलीफ पर अशिया 1 किलो से ज्यादा नहीं मिलेंगी। खवातीन कहती हैं रेट मुनासिब पर जरूरत के मुताबिक अशिया खरीद नहीं सकते। हुकूमत रिलीफ के साथ खरीदारी की मिकदार भी बढ़ाए। मॉडल बाजारों में रिलीफ की फ्राहमी। 1 किलो खरीदारी की शर्त से खरीदार मायूस। फैसलाबाद के मॉडल बाजार में रिलीफ पर अशिया 1 किलो से ज्यादा नहीं मिल रही। खवातीन कहती हैं 25% तक राहत तो दी जा रही, लेकिन जरूरत के मुताबिक अशिया खरीदारी की इजाजत नहीं। इतनी दूर आने के बाद भी मखसूस मिकदार में ही चीजें मिलती हैं। हमें इधर अशिया तो मिल रही है, लेकिन बाहर से मुनासिब मिल रही है, लेकिन 1 किलो मिल रही है। इनको चाहिए कि हमें ज्यादा दें, तो अगर देनी है तो ज्यादा दें, वरना हमारे घरों में पहुँचाएं। इन्हें ज्यादा देना चाहिए और ज्यादा देंगे तो अपनी इबादत करें घर में बैठ के। खवातीन का मजीद कहना था कि दिन भर के इंतजार के बाद भी 1 किलो से ज्यादा कोई चीज नहीं मिलती। रमजानुल मुबारक में रोज खरीदारी करने आना मुमकिन नहीं होता। शहरियों का कहना है कि लंबी लाइनों में लगाकर तस्लील की जा रही है। पता है कितने लोग गुर्बत से यानी कि अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितनी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो जाके उनके घर में फराहम करें, यहाँ बुलाकर क्यों उनको जलील कर रहे हैं। मुश्किलात यही है कि जब लोग इतनी दूर से आते हैं यहाँ पे ये चीज़ें लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनको क्वांटिटी बहुत कम मिल रही है। इनको क्वांटिटी ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो औरतें घरों से निकल नहीं सकती यहाँ पे चीज़ें लेने के लिए। सार्फिन कहते हैं हुकूमत सस्ती अशिया की वाफिर मिकदार में फ्राहमी यकीनी बनाए, ताकि रोज बरोज के चक्रों से छुटकारा मिल सके। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी। चिन्योट में 60,000 से ज्यादा राशन तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि 1,06,514 अफराद तक राशन पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जबकि 94,000 राशन के थैले गरीब लोगों तक पहुंचा दिए गए। रेवेन्यू अमले को रोजाना राशन के 10,000 थैले तकसीम करने का हदफ दिया गया है। इंतजामिया का अहसन इक़दाम। रमजान निगहबान पैकेज के तहत राशन की दहलीज पर फराहमी का सिलसिला जारी। अब तक जिला में 60,000 से जायद पैकेज तकसीम किए जा चुके हैं। जिला में 1,60,514 अफराद तक राशन पहुँचाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जिले इंतजामिया की टीमें घर घर जाकर राशन पहुँचा रही हैं। राशन वाली गाड़ी को लूटमार से बचाने के लिए एक पुलिस एहलकार भी तैनात किया गया है। इंतजामिया का कहना है कि 10 रमजानुल मुबारक तक तमाम राशन मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिया जाएगा। जंग में भी मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम का सिलसिला जारी। 94,000 राशन के थैले गरीब लोगों तक पहुंचा दिए गए। रेवेन्यू अमले को रोजाना राशन के 10,000 थैले तकसीम करने का हदफ दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमेर ने इलाका ब्लॉक शाह का दौरा करके राशन तकसीम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमेर ने कहा कि बेनजीर प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद के क्वाइफ चेक करके राशन तकसीम कर रहे हैं। मुल्क के ज़र मुबादला में बड़ा हिस्सा डालने वाला शोबा टेक्सटाइल के बरामदात में कमी। एक्सपोर्ट में कमी से नेटवेयर सेक्टर शदीद मुतासर। जुलाई से फरवरी के 8 माह में खसारा रिकॉर्ड किया गया।
मुल्क के लिए कसीर ज़र मुबादला कमाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बरामदात में कमी, एक्सपोर्ट कम होने से नेटवेयर सेक्टर शदीद मुतासिर। जुलाई से फरवरी तक के 8 महीनों की मजमूई रिपोर्ट के मुताबिक नेटवेयर खसारा रिकॉर्ड। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गुज़श्ता माली साल के 8 माह में बरामदात 11 अरब 218 मिलियन डॉलर थी। रवां माली साल के 8 माह में टेक्सटाइल बरामदात 11 अरब 145 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। नेटवेयर शोबा का टेक्सटाइल के मजमूई हुजम में 3 अरब 78 मिलियन डॉलर का हिस्सा था। रवां माली साल नेटवेयर की बरामदात 2 अरब 90 मिलियन डॉलर तक महदूद रहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक का बेटा आइस नशे का आदी निकला। नशे में मुब्तला होकर घर पर ही फायरिंग कर दी। साबिक MNA मियां मोहम्मद फारूक की मदयत में बेटे फहद फारूक के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम का लाहौर में इलाज कराया गया मगर आइस नहीं छोड़ी। फहद फारूक ने आइस नशे में धुत होकर घर पर जानलेवा हमला किया, ताहम कोई जानी नुकसान न हुआ। थाना रोशनवाला में FIR दर्ज की गई। मियां फहद फारूक को गिरफ्तार करके इलाज कराने का मुतालबा किया गया है। मुलजिम नशे में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। महकमा तालीम की अदम दिलचस्पी, पढ़ा लिखा पंजाब का नारा ख्वाब बन गया। तालीमी इदारों की हालत खस्ता हाल। हुकूमत की लापरवाही या फिर महकमा तालीम की गफलत। फैसलाबाद डिवीजन में 23 सरकारी कॉलेजेस की इमारतें खस्ता हाल करार। फैसलाबाद के 7, टोबा टेक सिंह के 5, न्योट 7, जंग के 4 सरकारी कॉलेजेस की इमारतें शामिल हैं। महकमा बिल्डिंग ने सर्वे रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को अरसाल कर दी। 23 सरकारी कॉलेजों की बहाली के काम लटक गए। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज ईदगाह रोड की इमारत खतरनाक करार। 40 करोड़ ओल्ड ब्लॉक के लिए दरकार है। तलबा का कहना था कि इमारत जल्द से जल्द तामीर की जाए। हमारे कॉलेज की आधी बिल्डिंग बंद है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। ये बहुत ज़्यादा डेंजर का शिकार है। हमारी बिल्डिंग बहुत देर से बंद है और हम यहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये डेंजर का शिकार है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द नहीं बन जाए और खुल जाए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन पीपल्स कॉलोनी 5 करोड़ 50 लाख के काम लटक गए। गवर्नमेंट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में लैब और कमरों की बहाली के लिए 25 करोड़ ना मिल सके। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन जड़ावाला में कमरों की बहाली के लिए 4.5 करोड़ दरकार है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज फैसलाबाद के कमरों की बहाली के 5 करोड़ और गवर्नमेंट मिल्लत ग्रेजुएट कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद 5 करोड़ 50 लाख के तामीराती काम लटक गए। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉलेज फैसलाबाद के तामीराती कामों के लिए 1 करोड़ 50 लाख दरकार है। कैमरामैन रामिश के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत का स्कूलों को अपग्रेड करने का प्लान। महकमा तालीम फैसलाबाद ने जिला भर से 186 स्कूल्स के अपग्रेडेशन का प्रपोजल पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया। फैसलाबाद के 107 प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री का दर्जा दिया जाएगा। का बच्चों को घरों के करीब तरीन तालीमी मौके देने के लिए स्कूल को अपग्रेड करने का प्लान। महकमा तालीम फैसलाबाद ने 186 स्कूल्स की अपग्रेडेशन का प्रपोजल पंजाब हुकूमत को भिजवा दिया। हुकूमत के तय करता कम से कम मयार पर पूरा उतरने वाले स्कूल्स का प्रपोजल भिजवाया गया। प्राइमरी से एलिमेंट्री अपग्रेडेशन के लिए 2 शराइत रखी गई थी। 1 से 2 किनाल अराजी और 15 से 20 तलबा 4वीं और 5वीं जमात में होने की शराइत शामिल। फैसलाबाद के 107 प्राइमरी स्कूल को एलिमेंट्री का दर्जा देने की सिफारिश की गई। दूसरी जानिब मिडल से हाई स्कूल अपग्रेडेशन के लिए भी मयार तय किया गया था। 5 से 6 किनाल अराजी और 30 से 40 तलबा 7वीं और 8वीं जमात में होने का मयार तय था। जिला भर के 79 एलिमेंट्री स्कूल्स को हाई स्कूल के दर्जे तक अपग्रेड करने की सिफारिश भिजवा दी गई। फैसलाबाद में किसी स्कूल को हाई सेकेंडरी अपग्रेड करने की सिफारिश नहीं की गई। प्राइवेट तालीमी इदारों की बढ़ती हुई फीसें। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने वालिदैन को फीसों में रिलीफ देने के लिए हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। फीसों में कमी को यूटिलिटी बिल्स और मुख्तलिफ टैक्सेस में रिलीफ मिलने से मशरूत कर दिया। प्राइवेट तालीमी इदारों की बढ़ती हुई फीसों से वालिदैन परेशान। महंगाई के दौर में तालीम हासिल करना ख्वाब बनने लगा। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने वालिदैन को फीसों में रिलीफ देने के लिए हुकूमत को मुतालबात पेश कर दिए। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स खालिद हयात कमोका कहते हैं, हुकूमत निजी स्कूल्स को यूटिलिटी बिल्स के कमर्शियल रेट्स लगाने का सिलसिला खत्म करे। पिछले कुछ सालों में महंगाई में 200% तक इजाफा हुआ। हुकूमत निजी स्कूल्स को रिलीफ फराहम नहीं करती तो फीसें बढ़ाने के अलावा कोई हल नहीं। दोनों अतराफ पे मुश्किलात अगर हम देखें, प्राइवेट तलीमी इदारे वाले भी परेशान हैं और पेरेंट्स महंगाई की वजह से परेशान हैं। तो इसमें मैं चाहता हूं कि हुकूमत वक्त अपना रोल अदा करे। हुकूमत वक्त अपना रोल इस तरह अदा कर सकती है कि जो प्राइवेट तलीमी इदारों पे कमर्शियल टैक्सेस हैं उनको ख़त्म कर दे और उसकी एक लिमिट रखे कि वो तलीमी इदारे जो इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं, जितना एक सरकारी तलीमी इदारे पे एक बच्चे पे खर्च आ रहा है, उसको फ्लाई डिक्लेयर कर दें, उनके कमर्शियल टैक्सेस माफ़ कर दें और उनको पाबंद कर दें कि वो 10% बच्चों को फ्री एजुकेट करेंगे। चेयरमैन APS खालिद हयात कमोका का कहना था कि वालिदैन को फीसों में रिलीफ सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है अगर हुकूमत निजी स्कूल्स पर आयद बारी टैक्सेस खत्म करे। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद।
टोबा टेक्सिंग इंतजामिया का शहरियों की सहूलत के लिए बड़ा इकदाम। झंग रोड पर अलहदा से रेडी बाजार लगा दिया गया। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया का ऐसा इकदाम शहरियों की आसानी के लिए झंग रोड पर अलहदा से रेडी बाजार लगा दिया गया। झंग रोड पर अलहदा रेडी बाजार लगाने से ट्रैफिक मसाइल में कमी होगी। बाजार में शहरी बआसानी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इंक्रोचमेंट टीम की तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी हैं। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मोहसिन मजहर का कहना था कि इब्तदाई तौर पर झंग रोड पर रेडी बाजार लगाया गया है। मुकर्ररा जगह के अलावा किसी और मुकाम पर रेडी लगाने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर रेडी मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के मुताबिक और डीसी साहब की हिदायत पे हमने जो रेडी बाज़ार इसको ऑर्गेनाइज़ किया है जंग रोड के ऊपर पहले फेज़ में। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो बेहंगम रेडियाँ फटी थी बाज़ारों में, सड़कों पे और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने कुछ रेडियाँ यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की हैं और उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग वगैरह की है। इसका पर्पज़ यही है कि ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जाएगा और रेडिंग को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा एक पैटर्न में। जिला में दीगर अहम शाहराहों पर भी रेडी बाजार लगाए जाएंगे। अलहदा रेडी बाजार लगने से बाजारों में रश कम होगा। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग।